Okay, girls. So as you know that we are studying John Donne, and we are studying its poems nowadays. So we are done with one poem by John Donne, which was The Good Morrow, and let's revise or have a recapitulation of that poem that we are done in the previous day. That was The Good Morrow, before going towards the other poem, that is the sun rising. So the good morrow may we came to know about something like that this poem is a critical monologue, and in that poem the lover he was speaking to his beloved. He says that their life before falling in love was a state of unconsciousness, like infancy, or the ages long sleepers of the seven proverbial Christian young man who remained asleep in a in a cave for ages. And he was just of the idea that before falling in love with his beloved, or both before falling in love with each other, both of the people or both of the souls were they were in the state of unconsciousness, like infancy, and like the seven sleepers, which was a historical or a religious reference, and then the poet says that he came into consciousness only when he fell in love with his beloved, and when they both fell in love with each other, and then their souls they you know what they woke up, and they woke up from sleep, and he was of the view that this was truly the life, and now they were truly existing, because they think that before falling in love, their souls, they were might be they were sleeping, and they were in the state of unconsciousness. So then they say that good morrow is the good morning, which is this was for the awakening souls, okay, for the souls that are not now waking up. And then he said that the love between between him and his beloved is self-sufficient. The two lovers make up the whole world for each other. Sitting face to face, they can see this world in each other's eyes in the form of their images, because they are seeing each other's face in each other's eyes. And this world is free from the troubles and sufferings of the material world. How the material world, or the people of the material world, they are suffering. He says that we are free from all of those sufferings, because our word is the word that is existing between him and his beloved. So then he says that discoverers like Columbus may go on discovering new words. They should discover them. They should do whatever they are busy in doing so. But he says that the word is composed of the two lovers' love for each other. And if the love is existing on both the sides equally, it means that their love can never die, because death is happening because of death takes place because of the decomposition of or the imbalanceness of the two compounds or the two elements. And if the love is existing on both the sides equally, then they will stay immortal, and their love will be immortal. So the poem ends on Donne's assertion on the philosophy of love, which he says again that love is the fusion of two souls. And being a metaphysical poem, it contains a number of conceits, as I have told you earlier. For example, the reference of seven sleepers, आपको मैंने बताया था conceits होती हैं, जो metaphysical conceits जो है वो that are used by John Donne. उसमें ये होता है कि बियॉन्ड मेटाफिजिकल, मेटा बियॉन्ड फिजिकल, फिजिक, तो बियॉन्ड फिजिक जाके उसने जो कुछ कंपैरिजंस कंसीट्स होते हैं, मतलब जो बहुत एक्सटेंडेड मेटाफर्स कहते हैं, कंसीट्स होती हैं एक्सटेंडेड मेटाफर्स। मेटाफर्स मैंने आपको बताया था, जो कंपैरिजन होता है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एंड आइज हो, एज हो, तो जब वो एक्सटेंडेड हो बहुत दूर परे जाके, जैसे उसने सेवन स्लीपर्स का जो है वो यहाँ पे रेफरेंस दिया, फिर उसने जो है वो केमिस्ट्री का एक रेफरेंस दिया कि जो डिकम्पोजिशन होती है ये, और फिर उसकी
वजह से डेथ अकर होती है, डेथ टेक्स प्लेस, तो उसने कहा कि अगर इट विल नॉट हैपन अगर जो है वो दोनों की तरफ से इक्वली जो है वो लव इज एग्जिस्टिंग. सो दीज टू रेफरेंसेस दे वर द मेटाफिजिकल कंसीट्स यूज्ड बाय जॉन डन. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन आ दे तो यू आर गोइंग टू कोट देम इन योर like in your poems, okay, or in your explanation. Remember one thing that जो है वो मैंने आपको बताती चलूँ कि अगर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाता है अव्वल पे, तो अभी तो नहीं, मिड्स में आपको पता है कि मिड्स में बेटा आपको 20 एमसीक्यूज आएंगे और जो है वो 20 मार्क्स के, और 10 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं. तो दे मे बी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन, हो सकता है कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो और आपको अटेम्प्ट करने हो वो, और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो. सो रिमेंबर दिस थिंग एंड I'll just make it confirmed again. So आपको पता होना चाहिए गर्ल्स, आपने बहुत तैयारी भी इसी तरीके से करनी है कि आपने एमसीक्यूज जो है वो करने हैं, तो आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपने उस लिहाज से जो है वो अपनी तैयारी कर लेनी है. तो उसके बाद जी बात कर लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन. अगर आपको पता है कि एक्सप्लेनेशन में कभी भी आई का वर्ड यूज नहीं करते. क्वेश्चन भी अगर आपने लिखा है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते द पोएट सेज दैट आई वाज डूइंग दिस एंड द पोएट सेज दैट द वर्ड दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन मी एंड माय बिलवर्ड. नो, आप ऐसे नहीं लिख सकते. यू विल राइट क्वेश्चन में भी एंड इन योर एक्सप्लेनेशन सेक्शन एज वेल दैट द राइटर सेज दैट द लव दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन हिम एंड हिज बिलवर्ड. ठीक है. तो आप आई और मी का ये जो है ना, ये आप यूज नहीं कर सकते. दैट इज नॉट अलाउड और स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. ठीक है. तो आपने इन चीजों को जो है वो करना है. एक्सप्लेनेशन बेटा कभी भी करें तो उसमें इस चीज को मद्देनजर हमेशा रखते हैं कि आप आए जो है और जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको आप यूज नहीं करते. तो यू विल से, क्योंकि हम वी आर द थर्ड पर्सन, हम इसको लिख रहे हैं उनके बारे में. हम लिखेंगे द राइटर सेज दैट ही वाज डूइंग सो एंड ही वाज ऑफ द ओपिनियन, ही वाज थिंकिंग दैट. तो इस तरीके से ही करके और शी और इस तरीके से लिख के, तो फिर वो हम उसको जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. और या फिर अगर हम एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन को भी. लेट्स कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म. और आपको पता है दिस इज द एंड ऑफ योर जो है वो midterm syllabus. So that is the poem, the next poem, which is the Sun Rising by John Donne. So the in this poem, the Sun Rising, the tone of the poet is quite mocking in this poem. Donne imagines a world where the embraces of the lovers are not relegated. They are just referred only to the night, but the lovers can make love anywhere, anytime as they like. He personifies the sun and makes fun of him. Please mute yourself, girls. Please mute yourself, girls. Okay, so we were discussing that the poet John Donne, he personifies the sun and makes fun of him. So in this poem, Donne lists the exotic places of this world by saying that his mistress is all those things, and his mistress and the bed the bedroom is the whole world for them, and the bed is the whole world for them. So then he says that he uses the hyperbole of the highest order to highlight the authority of his emotions and feelings to other worldly things and matters. He uses the theme of belittling the comic forces or the cosmic forces by a strange process of reducing the entire world to the bed of beloved. He plays on the you know what tall main astronomical idea that the earth is the center of the universe. यही है ना tall main आपका astronomical idea that the earth is the center of the universe, and with the sun rotating around the earth. By similarizing his bed as the center, then he says that his beloved's bed is the center and the sun is revolving around around their bed of these two lovers.
So he gives ultimate universal importance to the lovers, making all the physical world around them and subject to them. Then the poem gives voice to the feelings of lovers, that they are outside of time and their emotions are the most important thing in the world. So he says that their in the emotions that are existing between them is the most important thing. Let's come towards the stanzas. The sun rising, busy old fool, unruly sun, why dost thou thus? O busy and fool, a rude son. He is, you know what, ये उसको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है कि तुम क्यों निकल आए? Why do you peep through windows and curtains and call on us? क्यों जो है वो तुम हमें जो है वो हमारे झांक रहे हो हमें, क्योंकि वो रोशनी अंदर आ रही होती है ना सूरज की कमरे से, तो वो कह रहे हैं कि तुम क्यों झांक रहे हो और क्यों हमें जगा रहे हो? टू लीव द बेड एंड गेट बिजी विद आवर रूटीन वर्क, क्यों हमें इस तरीके से थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, क्यों जो है तुम हमें जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हो? मस्ट टू दाई मोशंस लवर सीजन्स रन, वाई शुड लवर्स ओबे योर टाइम टेबल, हम क्यों तुम्हारा टाइम टेबल ओबे करें कि तुम अब आ गए हो तो हमें अपना जो है वो अपना बेड को छोड़ना पड़ेगा और हमें यहाँ से जो है वो अपने कामों को जो है वो लगना पड़ेगा. Saucy, pedantic wretch, go child, late school boys and sour parentics. Go tell court how huntsman that the king will ride. Call country aunts to harvest offices. Love alike, no season nor clime. So no hours, days, months, which are the rags of time. So इसमें यहाँ पे ये कह रहा है कि your cynical, proud, miserable fool, go away to frighten the latecomers to school, where he says in these lines that saucy pedantic wretch, go child, late school boys and sore parenthesis. There he says that कि जाओ और जाके जो स्कूल बॉयज जो लेट हो रहे हैं उनको जाके जगाओ, उनको परेशान करो जाके कि जो है वो अब वो लेट हो रहे हैं, उनको मतलब जाना चाहिए स्कूल. और वो जो प्यूपल्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, जो वेरियस ट्रेड्स में जो कि काम करते हैं, जो सनराइज पे ही उनका काम स्टार्ट हो जाता है, उनको जाके जगाओ. और फिर वेयर ही सेज के जाओ और जाके जो हंट्समैन कोर्ट हंट्समैन है उनको जाके कहो कि आज उनको बताओ जाके कि आज किंग जो है वो आज राइडिंग पे हंटिंग के लिए निकलेगा. और गो टू द कोर्ट मैन एंड टेल देम दैट द किंग वांट्स देम टू गो आउट हंटिंग विद देम. और कॉल द फार्मर्स, ये जो है ना आंट्स, कंट्री आंट्स है बेटा, ये यहाँ पे फार्मर्स को कह रहा है कि टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, के और कॉल द फार्मर्स टू स्टार्ट हार्वेस्टिंग द क्रॉप. And love, उसने कहा है यहाँ पे, he says that love does not care for hours, days or months, which are just pieces of time. Rags of times are pieces of time. So he says that we are not concerned with the time, or we are not concerned about the other things. तो तुम हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? Why you are making us disturb? We are not supposed to follow your timings. We are not supposed to follow you. कि जब तुम आओ और हमें सुबह सुबह उठ के जो है वो हम अपने कामों को लग जाएं क्योंकि तुम आ गए हो. सूरज को जब वो इस तरीके से कह रहा है और बिजी ओल्ड फूल कह रहा है, उसको मॉक कर रहा है, उसको मजाक उड़ा रहा है उसका, और उसको जो है वो डांट रहा है, स्कोल्डिंग सी जो है वो इसकी टोन है. मॉकिंग भी है, स्कोल्डिंग भी है. तो this was the first stanza. Then we are coming towards the next stanza, which is thy beam so reverent and strong, why shouldst thou think? He says that your rays are not so powerful and respectable as you think. इतनी नहीं है reverend और इतनी respectable और इतनी strong नहीं है तुम्हारी जो rays हैं, तुम्हारी जो beams हैं. Why should you thou think? क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये बहुत ज्यादा strong है? I could eclipse and cloud them with a wink. मैं तो इसको भी ग्रहण लगा दूं. And could uh, and cloud them with a wink. He says that I could shut them out by winking my eyes, क्योंकि जब आंख बंद करेगा तो वो क्या होगा, अंधेरा आ जाएगा ना उसकी आंख के आगे. तो कहते हैं मैं तुम्हें एक ग्रहण लगा दूं, एक विंक करके अपनी आंख को जो है वो झपक के. Then he says that but that I would not lose her sight so long. लेकिन कहता है वो मैं ऐसा नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि I do not want to lose the sight of my beloved. He says that he won't do it because he is not in a state, he is not in a mood to lose the sight of her beloved, क्योंकि of his beloved, क्योंकि वो अपनी beloved को देख रहा है जो उसकी वाइफ ही है एंड डन. और वो उसी के लिए उसने जो है वो पॉम लिखी है, उसी की तरफ रेफरेंस है. और वो ही सेइंग कि अगर मैं एक मिनट के लिए अगर मैं आंख झपकूंगा तो मैं अपनी beloved का beloved girls two things please consider them.
लवर होता है जो मोहब्बत करने वाला होता है, और बिलवर्ड होता है जो, और बिलवर्ड होती है जिससे मोहब्बत की जाती है, जिसको कहते हैं महबूबा, ठीक है। और लवर इज द और जो है वो जो मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बिलवर्ड हम कह रहे हैं, तो पोइट की बिलवर्ड जो है वो उसकी वाइफ है, ठीक है, जिससे वो मोहब्बत करता है, और ही इज जस्ट प्रेजिंग हिज बिलवर्ड, और जो वो कहता है कि उससे उसको इतनी ज्यादा मोहब्बत है दैट नॉट इवन फॉर अ मोमेंट, that or not with a winking of his eye, he is not wanting to lose the sight of her beautiful or pretty beloved. And then he says, if her eyes have not blinded thine, that he is saying that if your eyes have not been blinded by the glow in her eyes, उसको सूरज को कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा कर तो दूं, लेकिन अगर जो है वो मेरी वाइफ की जो चमक, उसका जो ग्लो है, उसको देख के अगर तुम ब्लाइंड ना हो जाओ, तो सूरज को ही कह रहा है, ठीक है। कि उसी ने तुम्हें ना ब्लाइंड कर दिया हो। देन ही सेज लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, then he is over here saying that go around the word and tell me tomorrow whether what are the things, क्या कह रहा है, look कहता है देखो, and tomorrow late जो है वो जाओ और जाके जो है वो मुझे कल बताओ, क्या चीज बताओ, टेल मी वेदर बोथ द Indias of spice and mine, beware thou left them or lie here with me. As for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay. Girls, as you know that this is the you know what using over here the old English, तो इसमें थोड़े से differences हैं, but they are not difficult to understand. सो अब वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या बताओ, वेदर ऑल द वेल्थ ऑफ ईस्ट इंडियाज एंड वेस्ट ईस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज स्पाइसेस एंड गोल्ड लाइज देयर और लाइज हियर विद मी, कहता है सारे स्पाइसेस और सारे जो उनकी जो वेल्थ है सारी मुझे बताओ जरा, वहां है या मेरे पास है। आई मीन वो अपनी बिलवर को कह रहा है शी इज सो प्रीशियस, शी इज सो गुड, के जो है वो इतनी कीमती है कि इतना तो अगर वेस्ट इंडीज और ईस्ट इंडीज का सारा गोल्ड और उनकी स्पाइसेस को भी इसकी सारी वेल्थ मिलाई जाए तो भी वो उतनी नहीं बनती। देन ही सेज दैट इफ यू वांट टू सी द हैप्पीनेस एंड ग्लोरी ऑफ द किंग्स whom you saw yesterday, I am going around the world, you can find all the happiness and glory here in one bed. कहता है कि अगर तुम जाते हो और जाके जो है वो सारे किंग्स की ग्लोरी जो तुमने जैसे कल देखी थी, अब तुम यहाँ पे देखो कि जो सारी जो ग्लोरी है वो वाली सारी जो अजमत है, सारी जो खुशियां है, हैप्पीनेस है, वो तो मेरे इस एक बेड में एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसके इस एक बेड पे जो है वो उसकी beloved is existing. How much he is in love with his beloved, that is somewhat, you know what, it seems something like fantasy sort of the thing, but it was true. He was so true in love with his beloved, and वो उसने पहले अपनी लव पोइट्री लिखी थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी इसको अपनी वाइफ से एंडान से, और इसकी लव मैरिज भी थी, और ये इलॉपमेंट हुई थी, ये भगा के ले आया था अपनी बिलवर्ड को। ओके, सो लेटर जो है वो जब इसका जो है वो इसकी वाइफ की डेथ के बाद ये बहुत ज्यादा इसने सफर किया था, और उसके बाद ही वाज सो मच इन ग्रीफ, उसके बाद में उसने जो है डिवाइन पोइट्री लिखी थी, ठीक है, डिवाइन पोइट्री। और फिर उसने उसके बाद में एंड पे जब उसने कहा था कि ये जो सारी मोहब्बत है, फिर बाद में अपनी डिवाइन पोइट्री में वो अल्लाह ताला की ज़ात से माफी मांग रहा होता है कि गॉड गॉड से ही कि मुझे वो सारी मोहब्बत का और सारी जो एप्रिसिएशन है उसका हकदार सिर्फ तेरी ही ज़ात है। मैं मतलब मैंने जो किया अब तक जो है उसके लिए मतलब माजरत और ये सब कुछ माफी का तलबगार होता है। फिर ये अपनी जो डिवाइन पोइट्री में देन ही जस्ट एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वो कहा करता था कि फिजिकल लव लीड्स टू द स्पिरिचुअल लव, कि जो फिजिकल लव है ना वो आपको स्पिरिचुअल लव तक लेकर जाता है। और ओवर हियर ही इज प्रेजिंग द स्पिरिचुअल और द फिजिकल लव दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन हिम एंड हिज बिलवर्ड। और वो कहता है कि द ग्लोरी एंड द हैप्पीनेस ऑफ द किंग्स और द कोर्ट्स और द ऑल ऑफ द वेल्थ और ऑफ द वेस्ट इंडीज एंड ईस्ट इंडीज, तो उसने कहा ये सब कुछ तो कहीं पे भी नहीं है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जिस्टिंग हियर इन माई बेड, बिकॉज देयर इज द here is the presence of my beloved or his beloved. Then we are coming towards the next stanza, which is she is all states and all princes I, कि वो सारी स्टेट मतलब वो सारी रियासतें हैं और मैं उनका प्रिंसेस, यानी कि वो रियासत है तो मैं उसका प्रिंस हूँ, नथिंग एल्स इज।
तो यहाँ पे ही सेइंग दैट माय बिलवर्ड इज एज प्रीशियस एज ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। अगर सारी स्टेट्स जितनी भी है ना वर्ल्ड की, उनको जो है वो मिला लिया जाए तो फिर मेरी बिलवर्ड इतनी प्रीशियस बनती है कि वो फिर भी कुछ भी नहीं है, नथिंग एज इज। और उसके अलावा कहते हैं कि एंड आई ऑल प्रिंसेस, तो ही सेज दैट आई पोजेस हर, सो आई एम इक्वल टू ऑल द किंग्स, क्योंकि मेरी पोजेशन में है मेरी बिलवर्ड, क्योंकि वो मेरी है और मैं उसके ऊपर मलकियत रखता हूँ, मुझे उसकी पोजेशन मिली हुई है। इसका मतलब है कि मैं किंग हूँ, एंड आई एम जस्ट इक्वल टू द किंग्स ऑफ ऑल, एंड सो आई एम इक्वल टू ऑल द किंग्स, नथिंग एल्स इज एंड देयर इज नथिंग लाइक अस। और हमारे जैसा तो हमारी जैसी दौलत, हमारे जैसा कीमती चीज तो किसी के पास नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस कंपेयर टू दिस, all honorics mimic all wealth's alchemy. Then he is saying that princes only play our role, मतलब वो तो हमें इमिटेट करे, प्रिंसेस तो बस जो जितने भी प्रिंस है ना, दे आर जस्ट इमिटेटिंग अस। He says that princes only play our role compared to the wealth and honor that we have. All the wealth is just a chemical, and all honor is just imitation. उसने कहा है सारी वेल्थ तो अल्केमी है, यानी कि अल्केमी क्या होता है कि आप आम जो कोई धात होती है, मेटल होती है, इसको आप गोल्ड में चेंज करना। तो उसने कहा वो तो ऐसे हुई हुई, यानी कि उसकी कोई कीम जो है ना वो ऐसे ही है, उसको इमिटेट किया गया है। और जो तमाम जो ऑनर है तमाम, वो एक सिर्फ महज एक इमिटेशन है, इमिटेशन एक कॉपी, एक नकल है। तो उसने कहा वो तो हमें मतलब हमारे साथ मतलब जो है वो हमारा रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, और जब उनके पास इतनी वेल्थ और ऑनर नहीं है जितनी कि हमारे पास है। और क्यों? क्योंकि देयर इज अ लव, और देयर इज अ केमिस्ट्री ऑफ लव, दैट इज द बॉन्ड दैट इज existing between him and his beloved. Then he says, thou son art half as happy as we, in that the words contracted thus, thine its us ease and sense thy duties be. Then he says that you son are only half as lucky as we are, तुम तो हमारे से हाफ लकी हो जितना हम हैं, बिकॉज फॉर अस द होल वर्ल्ड हैज कंट्रैक्टेड इनटू इस दिस रूम, क्योंकि हमारे लिए जो पूरा जो है ना, इन दैट द वर्ड कंट्रैक्टेड दस, कि हमारे जो पूरे का पूरा जो वर्ड है वो तो हमारे इस जो है वो कमरा जो है हमारा जो रूम है उसी के अंदर यही हमारी पूरी दुनिया है। He was actually praising the love that is existing between that was existing between him and his beloved, and he was just of the view, and he was just saying that this room in which me and my beloved are present, this is the whole world, दिस इज द होल वर्ड फॉर आस, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों? और हमारे पास सारी वेल्थ है, हम किंग्स हैं, हम मेरी वाइफ जो है वो उसके शी इज द प्रिंसेस एंड आई एम द प्रिंस, और सब कुछ है, बिकॉज आई हैव माई beloved and we are having all those happiness and wealth. So then he says, you are old to warm the word, then thine age as ease and since thy duties be. तो कहते हैं कि तुम जो है ना, ओल्ड कहता है ना स्टार्टिंग पे भी, ओल्ड फूल बिजी सन, सो ही सेज दैट यू आर ओल्ड एंड नीड टू इजी वर्क टू डू। तुम जो है वो बहुत ओल्ड हो गए, और तुम्हारे तुम्हारे पास ना कोई इजी काम होना चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करनी है। तो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करना क्या है कि उसने जाके रोशन करना है पूरे के पूरे जो है वर्ड को। तो वो कहता है टू वार्म द वर्ड दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो तुम ऐसा करो ना, हम तुम्हारे लिए काम आसान कर देते हैं। तुम हमारा जो बेड रूम है, हमारा जो रूम है, वो एक पूरी दुनिया है, वो एक होल वर्ल्ड है। तो तुम बस हमारे ऊपर आके जो है वो वार्म हमें वार्म कर दिया करो, हमारे ऊपर आके जो है वो अपनी बीम्स जो है वो हम पे जब वो शाइन किया करो। इसका मतलब ये होगा कि तुमने इस तरीके से तुम सारी दुनिया को रोशन कर दोगे, क्योंकि डन के लिए उसका बेडरूम जो है, जो उसका बेड है, उसका बेडरूम है, वही एक पूरी की पूरी दुनिया है। देन ही सेज, then shine on us and you shine on the entire world. He says, shine here to us and thou art everywhere, shine on us, and this way you will shine on you will shine everywhere, or to the entire world. This bed thy center is, these walls thy sphere. And then he says that uh, let this bed be your center, इस बेड को जो है वो अपना सेंटर बनाओ, एंड द फोर वॉल्स ऑफ दिस रूम योर ऑर्बिट, और इसके जो फोर वॉल्स है ना, इसके ये तुम्हारा ऑर्बिट है, और इसमें तुम जो है वो रिवॉल्व करो, और इस तरीके से तुम क्या करोगे, you would be able to shine the whole world, because this our room is the entire world, and by shining on our room you will be able to shine the whole world. So this was basically the idea regarding the poem. Now we are going to see its
Girls, you guys know to make how to make the rhyming scheme, or how to make the rhyme. Mm, okay, let me show you. ओके, अब आपने ना जरा ध्यान से देखना है। अब देखिए, जैसे सन है, सन, डज, अस, रन। इसमें क्या है, पहले ए की बात करते हैं। सन, डज और अस तो मिल रहा है, सन, डज नहीं मिल रहा, ठीक है। सो सन ए हो गया, हम इसको लिखेंगे ए। आप लिखें प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर। डज और अस, ये जो है वो क्या हो रहा है, वो मिल रहा है, तो हमने इसको दस को बी का नाम दे दिया क्योंकि ये डिफरेंट है ए से साउंड, तो बी हो गया। और दस और अस तो मिल रहा है, इसलिए हम इसको भी बी दे देंगे। ओके, सो देन कम्स, it depends on the scheme. So sun और run, तो क्या होगा, पहला ए जो था वो अन था ना, और ये भी अन है। सन और रन ये दोनों सेम है। दास और अस ये दोनों सेम है। तो हमने ऊपर सन को जो है हमने नाम दिया था ए का, तो ये क्या हो गया, अस और अस, ये इसको हमने बी दिया था, तो ये भी बी हो गया क्योंकि इसके सेम राइमिंग स्कीम है। तो सन और रन मिल रहा है, तो हमने इसको ए नाम दिया था, इसको भी हम ए दे देंगे। ठीक है जी, तो हमारी राइमिंग स्कीम इन चार की हो गई, ए, बी, बी एंड फिर ए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं जी, चाइल्ड और राइड। चाइल्ड और राइड तो मिल गया। अब दिस इज द थर्ड, अब ये सी आ जाएगी, ना तो ए जैसी है ना बी जैसी है, तो सी आ गई। इसको हम सी का नाम दे देंगे, सी लेटर दे देंगे, सी। और दरम्यान में कोई और है, चाइल्ड, और जो है वो पेरेंटिसेस, सन, अस। सो यहाँ पे दोबारा जो है वो राइड में भी चाइल्ड और राइड सेम है, तो दोनों को हम जो है वो सी का नाम दे देंगे। पेरेंटिसेस और ऑफिसेस ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसको हम नाम दे देंगे डी का। ये तो सी था ना, इसको हम डी का नाम दे देंगे फिर, क्योंकि सी पहले हो गया था। तो दोबारा राइट, चाइल्ड और राइट, तो इसको भी हम सी का नाम दे देंगे। पेरेंटिसेस और ऑफिसेस ये भी डी हो गया और ये भी डी हो गया। अब क्लाइम और टाइम, क्लाइम और टाइम दोनों सेम हो गई, तो हमारे पास डी भी हो गया, तो हम इसको ई का नाम दे देंगे, तो यहाँ पे भी ई आ जाएगा और यहाँ पे भी ई आ जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट गर्ल्स? आपने देखना है राइम जो है वो हम कैसे बनाते हैं, राइमिंग स्कीम कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। और ये आपने ना गर्ल्स, इसके जो नेक्स्ट स्टांजा की आपने मुझे जो है वो अभी बना के भेजनी है राइमिंग स्कीम। ठीक है, तो इसकी राइम मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम ए बी सी डी हम ये सब कुछ यूज करेंगे। सबसे पहले ए, सन, तो सन और अस, ठीक है, ये मिल रहा है, तो हम इसको दोनों को ए का नाम दे देंगे। लेकिन दस, सन, सन और दस नहीं मिल रहा, ठीक है, तो हम इसको बी का, एक नई साउंड आई, एंड पे नई साउंड आई, तो हमने इसको बी का नाम दे दिया। तो इसी तरीके से जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने इसका जो है वो राइमिंग स्कीम इसकी बनानी है, और मुझे जो है वो आपने इसको सेंड करना है। आपको पता है कि इसमें हम देख लेते हैं, गुड मोरो की तरह दिस पोम टू रिफ्लेक्ट्स डांस हैप्पी मूड, एंड दिस पोम टू इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, द पोएट स्पीक्स टू द सन एज इट्स रेज पीप थ्रू द कर्टन्स एंड विंडोज ऑफ हिज बेडरूम, उसके साथ मुखातिब है सूरज के साथ। द पोएट इज अनॉयड, उसको गुस्सा आया हुआ है, एज ही इज इन द स्वीट कंपनी ऑफ हिज बिलवर्ड, ही टेक्स द सनलाइट कमिंग इनटू द रूम एज द इंट्रूजन ऑन हिज प्राइवेसी, और उसको पसंद नहीं आ रहा, why he is you know what disturbing, making them disturb जो है वो to the lovers. Okay, so he chides the sun, he just scolds the sun as a busybody, insolent old fool, peeping into the privacy of two lovers. Because you are disturbing the privacy of two lovers. Then he says that sunrise may be a call to duty for lazy schoolboys who are getting late from school, and for the trainees, those who are learning some trade, or for the kings or huntsmen
king's huntsmen, and for the farmers in the harvesting season. But love is not bound by the seasons and count of time like hours, days, and months. He defies the power of the sun, saying that he could shut out the sunlight by closing his eyes, but he won't do it only because that would deprive him of the sight of his beloved. लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं wing करूंगा तो I'll lose the sight of my or of his beloved. Then he says that in the present state of bliss, the poet thinks that he is happiest and luckiest person in the world. He thinks that in the form of his beloved, he is in possession of the whole world because he is possessing his beloved. Then he says proudly, he just proudly tells the sun to come back next day after seeing the whole world and witness that all the wealth and glory of the world is contracted in the form of these two lovers, and nobody in the world is luckier and happier than him and his beloved because they are having the lover and they are having the love of each other. Then taking the conceit to the farthest end of exaggeration, उसमें बहुत ज्यादा exaggeration की है ना इसने. Exaggeration होती है, hyperbole क्या होता है? Hyperbole होता है exaggeration, जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना. तो उसमें इसने एग्जेजरेट ही किया है, हाँ, कि जो है वो इतना जो है हमारा तो पूरी दुनिया के साथ इसने कंपेयर कर दिया अपने बेडरूम को, ठीक है. Then he says that he advises the sun to confine all its light and warmth to his bedroom because in the presence of his beloved, the single room is the entire world. Then he says that by ordinary standards, this poem is poetry. Carried beyond the limits of reason. But done, however, it has to be digested because this passion caused him a brilliant career in his youth. So he was again and again praising his beloved because he was deeply in love with his beloved, and that's why he was of the view that और exaggeration बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा चढ़ा के जो है वो metaphors वगैरह भी use किए हैं अपनी beloved को और उसकी beauty को और उसकी presence को praise करने के लिए. So this was basically the whole idea, and your all of your syllabus is covered, alhamdulillah, of your midterm. So all the very best, and in case of any confusion, you guys can ask me.